A very good morning to all my dear students. I am Shalini, your English teacher, and today I am going to explain you chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahla Mandela. His actual name was Rolihlahla Mandela. Rolihlahla means troublemaker. It means he would be very naughty in his childhood. शैतान रहे होंगे तो ऐसा नाम उनको दिया गया. And Nelson is the name given him by an Englishman, British teacher जो उनको पढ़ाते थे, उन्होंने इनको ये नाम दिया Nelson Mandela. Nelson. So, as you can see, this chapter is taken from his autobiography Long Walk to Freedom. Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये वहाँ से एक extract लिया है when he became the first black president. ये एक extract है जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक struggle उन्होंने face की और कितना लंबा टाइम उन्होंने जेल में बिताया just to free his country. Nelson Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary political leader. ये एक एंटी अपार्थेड आप शायद जानते होंगे, जो एक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की जिसके बेस पे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स. स्किन कलर को लेके वो डिस्क्रिमिनेट करते थे. दैट वाज द पॉलिसी ऑफ apartheid and Mr. Mandela was anti-apartheid means उसके अगेंस्ट थे इस पॉलिसी के, और ये एक रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर थे. He was a philanthropist who served as president of South Africa from 1994 to 1999. समाज सेवी थे और ये 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे. He was born on 18th July 1918. 18th July 1918 in South Africa, and he was died on 5th of December 2013 in Johannesburg, South Africa. पैदा भी साउथ अफ्रीका में हुए और इनकी मृत्यु भी साउथ अफ्रीका में ही हुई. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट some prizes he had won. First of all, Nobel Peace Prize. He won Nobel Peace Prize in 1993. He won Bharat Ratna in 1990, Nishan-e-Pakistan in 1992, Presidential Medal of Freedom in 2002, Gandhi Peace Prize 2001, and the list goes on. बहुत सारे और भी हैं. His nickname was Madiba, जो इनकी ट्राइब का नाम हुआ करता था, उसको रिप्रेजेंट करता है इनका नाम. So, I am going to start your chapter with before you read. This is an introduction. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Means apartheid जो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, apartheid ये एंटी अपार्थेड हुआ करते थे. तो व्हाट इज अपार्थेड? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम था, एक पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की जिसके अकॉर्डिंग वो लोगों को सेपरेट करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे उनकी रेस, उनकी जाति, उनके कलर, इन सारे बेसिस पर. कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम until very recently? Now you have to tell कि ये जो 3 नाम हमारे पास हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किस कंट्री, विच कंट्री वाज हैविंग
अपार्टेड पॉलिसी अभी हाल फिलहाल तक? यस, इट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अपार्टेड पॉलिसी सबसे बाद तक थी। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? कभी सुना आपने उनके बारे में? मंडेला and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. मंडेला और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन लोगों ने पूरी लाइफ टाइम अपार्टेड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years, 30 साल अपने जीवन के उन्होंने जेल में बिताए। 30 साल, 30 years. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. 1994 में first time democratic elections हुए and Mandela became the first black president of a new nation. और मंडेला को वहाँ का पहला first black president elect किया गया। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. जैसा मैंने आपको बताया था कि this chapter has been extracted from his autobiography, Long Walk to Freedom. वहाँ पर कौन सा पार्ट लिया है? The inauguration. Inauguration means जिस दिन इन्होंने as a president oath ली थी। ये उस दिन के बारे में सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। Okay, next. Mandela becomes South Africa's first black president. Mandela साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Oh my God. 3 centuries, it means 300 years they have been ruled from whites. 300 सालों तक उनके ऊपर गोरे लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने रूल किया और उसके बाद नेल्सन मंडेला 1994 में अपनी ज़िंदगी के 30 साल जेल में बिताने के बाद 1994 में वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेला's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी उसने 400 में से 252 सीट्स जीती और ये पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में ऐसा हुआ था इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. मिस्टर मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि उद्घाटन समारोह जो इनॉग्रेशन था वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर मीन्स जो ऊपर से खुला हुआ होता है जिसमें ऊपर कवरिंग रूफ नहीं होती, ऐसा एक थिएटर वहाँ पर हुआ जिसमें पूरे वर्ल्ड के 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा के बहुत सारे डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस वहाँ पर आए थे। Never, never again will this beautiful land experience the operation of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन चुके थे और जब उन्होंने अपना एड्रेस किया, अपनी कंट्री को एड्रेस किया मीन्स अपना भाषण दिया, तब उन्होंने कहा कि नेवर नेवर अगेन, कभी भी दोबारा ऐसा नहीं होगा कि ये ब्यूटीफुल लैंड, ये खूबसूरत धरती साउथ अफ्रीका की, कभी भी एक का शोषण दूसरे के द्वारा अब कभी और अनुभव नहीं करेगी। मीन्स अब आगे से साउथ अफ्रीका में कभी भी कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. ये उन्होंने वहाँ के उस दिन का क्या सीन था, उस सिनेरियो को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है
कि बहुत सारा एक खुशनुमा, जुबिलेंट मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला एक सीन था प्रिटोरिया की सड़कों पर, जहाँ पर ब्लैक्स यानी कि साउथ अफ्रीकन्स, वाइट्स यानी कि हमारे यूके यूनाइटेड किंगडम के लोग सब, और कलर्ड्स मीन्स जो हम लोग हैं, हम लोग कलर्ड पीपल्स में आते हैं, जो हम ना वाइट्स हैं ना हम ब्लैक्स हैं। तो ये सब लोग मिलके सेलिब्रेट कर रहे थे और लगभग 1 लाख से ज़्यादा अफ्रीकन मैन, वुमेन, बच्चे सब गा रहे थे, डांस कर रहे थे, खुश होकर के। खुश थे सब लोग क्योंकि उस दिन उनकी कंट्री फ्री हो गई थी और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट उनको मिल गए थे। सो टू स्टार्ट विद योर चैप्टर, पेज नंबर 17. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Mr. Mandela is saying कि 10th May, अच्छा मई में वहाँ पर ब्राइट और क्लियर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ये ऑटम सीज़न होता है, हमारे यहाँ समर होता है और साउथ अफ्रीका में ये ऑटम सीज़न यानी कि लगभग विंटर्स आने वाले होते हैं, अबाउट टू कम। तो वहाँ पर बहुत ही ब्राइट और क्लियर सा एक खुशनुमा मौसम था और मिस्टर मंडेला इज़ टेलिंग अस कि पिछले कुछ दिनों से, फॉर द फास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. means ऐसे लोगों से, दुनिया के बहुत महान हस्तियों से मैं घिरा हुआ था, पॉलिटिशियन से मैं घिरा हुआ था, जो लोग उद्घाटन से पहले, इनॉग्रेशन से पहले ही मुझे सम्मानित करने के लिए आए थे, मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए पहले ही आ गए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और ये कह रहे हैं कि जो इनॉग्रेशन था, उस इनॉग्रेशन से पहले कभी भी साउथ अफ्रीका में इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स एक साथ कभी नहीं आए थे। तो ये भी एक सम्मान की बात है कि मिस्टर मंडेला को रिस्पेक्ट देने के लिए इतने सारे लोग एक साथ आए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. जो सेरेमनी होनी थी, इनॉग्रेशन की सेरेमनी, वो यूनियन बिल्डिंग्स जो कि प्रिटोरिया में थी, वहाँ पर सैंड स्टोन के बने हुए एम्फीथिएटर में होने वाली थी। For decades this has been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और for decades means बहुत सालों तक, कई दशकों तक, decade होता है टाइम स्पैन ऑफ 10 years। तो डिकेड्स तक ये प्रिटोरिया का एम्फी थिएटर जो था वो वाइट सुप्रीमेसी मीन्स गोरे लोग इसको अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए यूज़ करते थे, सिर्फ वही लोग इसको यूज़ करते थे और वही लोग यहाँ पर अपने फंक्शंस ऑर्गेनाइज किया करते थे। और अब आज 10th मई को ये अलग अलग रंगों के लोगों के इकट्ठा होने की जगह बनी थी। जो लोग दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल, अनस्लीय, जिसमें नस्ल को लेके, रेसेस को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं होने वाला था, उस गवर्नमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. ये बता रहे हैं कि उस लवली ऑटम डे पर मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी, जिसका नाम था जेनानी, वो थी
और पोडियम पर, स्टेज पर वहाँ पर मिस्टर डे क्लार्क को पहले स्वर्न इन मीन्स शपथ दिलाई गई एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। वो मीन्स हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक डेप्यूटी प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में वहाँ पर 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स को अपॉइंट किया गया था। तो पहले मिस्टर डे क्लार्क उन्होंने सेकंड प्रेसिडेंट के तौर पे स्वर्न इन किया। इसके बाद नेक्स्ट पेज, मिस्टर थैबो मेबकी was sworn in as first deputy president। पहले कौन थे, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे, मिस्टर डे क्लार्क, और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे थैबो मेबकी। इन्होंने स्वर्न इन किया, शपथ ली। When it was my turn, और जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। और जब इनका टर्न आया मिस्टर मंडेला का, तो इन्होंने संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने की, उसमें विश्वास रखने की शपथ ली, स्वर्न इन किया, और अपने आप को, मंडेला ने अपने आप को इस डेमोक्रेटिक कंट्री और इसके लोगों की भलाई में समर्पित करने की शपथ ली। और फिर क्या कहा, टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो वहाँ पर गेस्ट इकट्ठा थे और जो दुनिया इनको देख रही थी टेलीकास्ट में, उनसे इन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी। This is all for today. We'll meet in next session, the rest of the chapter. Till then, goodbye and take care.